Hello everyone. Today I am going to explain you about the individual supply and market supply. So this topic is there in the fourth unit of economics. Let us understand what is individual supply and market supply. Individual supply is the supply of a good by an individual firm and seller at a given price and at a particular point of time. तो जो भी सप्लाई किसी इंडिविजुअल फर्म या सेलर के द्वारा किसी एक निर्धारित प्राइस पर और किसी एक निर्धारित वक्त पे की जाती है उसको आप इंडिविजुअल सप्लाई कह सकते हो. The sum total of such individual supplies of all exceeding seller in the market is called market supply. तो मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल सेलर्स या फर्म के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है उसको आप मार्केट सप्लाई कह सकते हो. So individual supply is the supply that is being made by individual firm or seller at a particular price and at a particular point of time, while market supply take into consideration the overall supply that is being made by the individual firm or sellers that are exiting in the market. Here, one table is also being given that is representing the price and supply that is being made by individual firm A and B, and the market supply which is showing the combined supply that is being made by individual firm A and B, means the total of supply that is being made by firm A and B. Okay. In the next slide, the supply schedule is being given of individual firm A and B, and on the basis of that, the market supply is also being presented. So let us move to the next slide. Hello everyone. Today we are continuing with the next slide that is showing the individual supply schedule of firm A and B. First of all, we will see the individual supply schedule of firm A, or you can say the individual supply curve of firm A, which is being based on the table that we have seen earlier. तो यहाँ पे आपको जो इंडिविजुअल फॉर्म ए है उसका सप्लाई कर्व यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है. इसमें आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से फर्म का सप्लाई भी एक्सपांड हो रहा है. तो इससे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है सप्लाई कर्व में, यानी सप्लाई और प्राइस के बीच में. तो ये जो सप्लाई शेड्यूल है उसके द्वारा प्राइस और सप्लाई के बीच का कॉम्बिनेशन आपको दिखाया गया है. So supply schedule shows the ability and willingness of the seller to supply at various price. तो यहाँ पे जो अलग अलग प्राइस होते हैं उसमें सप्लायर जो है वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करता है वो एक सप्लाई शेड्यूल के द्वारा प्रेजेंट किया गया है. सप्लाई शेड्यूल या सप्लाई कर्व आपको ये भी प्रेजेंट करता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि प्राइस और सप्लाई के बीच में एक तरह का पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है. सो ठीक उसी तरीके का जैसे सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए है, ठीक उसी तरीके का सप्लाई कर्व बी का भी रहेगा. वो भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है ठीक उसी तरीके से सप्लायर या सेलर जो होता है वो अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा क्वांटिटी में बेचता है. तो जिस तरह का सप्लाई कर्व फर्म ए का है ठीक उसी तरीके का सप्लाई कर्व रहेगा फर्म बी का. ओके. एंड फर्म बी का जो सप्लाई कर्व है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट करूँगा, और उसके बाद जो टोटल मार्केट सप्लाई कर्व है वो भी यहाँ पे प्रेजेंटेड ही है. सो while giving the explanation that is related to total market supply, or you can say individual supply and market supply, you have to present the three figure that is related to supply curve of firm A, supply curve of firm B, and the
total market supply or the market supply schedule, which is the total of supply from A and supply from B. Okay. हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सप्लाई कर्व ऑफ फॉर्म बी भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ भी प्राइस और सप्लाई का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है बाय द पॉइंट ऑफ दैट इज बीइंग प्लॉटेड ऑन द सप्लाई कर्व बाय ए बी सी डी ई। ये जो ए बी सी डी ई सप्लाई कर्व पॉइंट किए गए हैं सप्लाई शेड्यूल में, वो आपको प्राइस और सप्लाई के बीच का कॉम्बिनेशन दिखाता है, and it is also showing the relationship between price and supply, as well as the market supply curve is also being presented, that is the sum total of supply that is being made by firm A and B, which is also showing the upward trend. So this indicates the positive relationship between price and supply, because as the price is increasing of any commodity, the supply will also expand along with the price. That is being shown with the help of this supply schedules. Thank you. Yes, Swaminarayan everyone. Today I am going to explain you about the supply schedule. So supply schedule shows the willingness and ability of a seller to sell at various price at a particular point of time. तो जो सप्लाई शेड्यूल होता है वो किसी सेलर या किसी फर्म की एबिलिटी या उसकी विलिंगनेस को प्रेजेंट करता है कि वो फर्म या इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को किसी प्राइस पे किसी वक्त पे कितना सप्लाई कर सकता है, उसे सप्लाई शेड्यूल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। So supply schedule shows the willingness and ability of a seller or a firm to sell a particular commodity at various price and at a particular point of time. So here a figure is being presented that is showing the price of apples in kg and also the supply that is related to the apple. In the above diagram, price of the apple is represented on y-axis and supply of apple is being represented on x-axis. Plotting the graph of above table gives point A, B, C, D, E which show the various price and supply combination. यहाँ जो सप्लाई शेड्यूल आपको प्रेजेंट किया गया है, उस सप्लाई शेड्यूल में जो प्राइस है एप्पल की उसको प्रेजेंट किया गया है और जो सप्लाई रिलेटेड टू जो है एप्पल है उसको भी प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एप्पल और सप्लाई ऑफ एप्पल का एक एग्जांपल दिया गया है और यहाँ पे आपको ग्राफ में एसएस कर्व देखने को मिलेगा, दैट इज सप्लाई कर्व यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, जिसमें यहाँ कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं, दैट इज ए बी सी डी ई। तो ये जो पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं वो आपको प्राइस और सप्लाई के बीच का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, यानी कि कितने प्राइस पर कितनी सप्लाई एक्सपांड हो रही है ये आपको प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पैरा, व्हेन प्राइस इज ₹50, सप्लाई इज 200 kg. When price rises to ₹60, supply extend to 400 kg. And when price still further to ₹70, supply extend to 600 kg, and so on. The curve SS is called the supply curve and it has a positive slope. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस, यानी यहाँ पे जो एप्पल का प्राइस है वो जैसे बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड जो क्वांटिटी है यानी उससे रिलेटेड जो सप्लाई है वो भी एक्सटेंड हो रही है। जब प्राइस एप्पल का ₹50 था तो 20 kg सप्लाई हो रहा था, जब प्राइस बढ़कर 60 kg हो गया तब सप्लाई भी 400 kg बढ़ गई, और ठीक उसी तरीके से जब प्राइस 70 kg तक बढ़ा तब सप्लाई 600 kg बढ़ा, और उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई उससे रिलेटेड सप्लाई भी बढ़ता गया। तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है जिसे आप एसएस कर्व भी कह सकते हो, उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी कि वो एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, जिसे आप एक पॉजिटिव स्लोप भी कह सकते हो, क्योंकि वो प्राइस के साथ बढ़ता ही जा रहा है।
Okay, in my next slide, I am going to explain you about the change that is taking place in supply. Okay, so students, before understanding the change in supply, we need to understand the relationship between price and supply. So let us understand that what is the relationship between price and supply. There are two reasons for the positive relationship between price and supply. Sailors pursue the objective of profit maximization. When price rises, they see the possibility of increasing profit. Thus, they supply more at higher price. When price rises, these producers who were not willing to sell their stock at lower prices start selling the stocks. तो प्राइस और सप्लाई के बीच में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है हर एक सेलर का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपना प्रॉफिट जो है उसे ज़्यादा बढ़ाए, और जब उसके प्रोडक्ट की प्राइस जब ज़्यादा इंक्रीज होती है तब उसको ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि उसका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए वो उस वक्त ज़्यादा सप्लाई करता है जब किसी उसकी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही हो, या फिर उसकी कमोडिटी की प्राइस जो है वो मार्केट में ज़्यादा रेज हो रही हो। तो सेलर का क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, इस वजह से मार्केट में जब उसके प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो वो उस वक्त सप्लाई ज़्यादा करता है। When price rises, those producers who were not willing to sell their stock at lower prices start selling the stocks. तो जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो उससे रिलेटेड जो प्रोड्यूसर होते हैं जो उसे कम कीमत में नहीं बेचना चाहते थे, वो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। So, because of these two reasons, there is a positive relationship between price and supply. Okay, so in the next slide, we will continue with the change in supply. Hello everyone, Jai Swaminarayan. So, we will continue today with the point that is change in supply. The determinant of supply are classified under two major categories as price and factors other than price. And other factors are assumed to be remain constant and price is varied. There is expansion and contraction of supply. When price is held constant and other factors are varied, there is an increase and decrease in supply. तो जनरली सप्लाई में किसी तरह के चेंज अराइज होने के पीछे दो रीजंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। वो है पहला फैक्टर जो है वो है प्राइस, और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो है अदर देन प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ सकता है, या फिर जो दूसरे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उनकी वजह से चेंज आ सकता है। तो जब प्राइस के फैक्टर की वजह से सप्लाई में चेंज आता है तो सप्लाई में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन अरेंज होता है, और जब जो दूसरे फैक्टर्स है जो अदर देन प्राइस है वो उस फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में जब चेंज आता है तो सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज अराइज होता है। तो पहले हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो चेंज है जो सप्लाई में अराइज होता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। So when other factors are assumed to be remain constant and price is varied, there is expansion and contraction of supply. Other factor may constitute cost of production, price of factors of production, number of sellers, level of technology, government policies, etc. तो जब प्राइस की वजह से, प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से सप्लाई में जब चेंज आता है तो उस तरह के चेंज को आप एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कह सकते हो। इसमें अदर जो फैक्टर्स होते हैं, जो अदर फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनको कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है।
कांस्टेंट यानी कि जिसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता हो, उस तरह कंसिडर किया जाता है। तो इसमें कौन से फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है? वो फैक्टर्स है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नंबर्स ऑफ सेलर्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। और इन सारी चीजों को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए जब प्राइस में किसी तरह का चेंज अराइज होता है, मींस इंक्रीज या प्राइस अपवर्ड या डाउनवर्ड जब जाने लगती है, तो उस वक्त सप्लाई में भी एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन अराइज होता है। सो दैट इज समथिंग अबाउट द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इन द नेक्स्ट शेड्यूल a diagram is given which is helpful to show the expansion and contraction of supply, as well as one example is also given for the better understanding of expansion and contraction of supply. Okay everyone, so we will understand today about the contraction of supply and expansion of supply. Here in this diagram you can see the expansion of supply as well as contraction of supply, which is being represented through the same supply curve. तो यहाँ पे आपको जो भी एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन जो सप्लाई में अराइज हो रहा है वो एक ही सप्लाई कर्व के द्वारा इस डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है। यहाँ इस डायग्राम में सप्लाई जो है वो कमोडिटी से रिलेटेड वो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट की गई है, जबकि प्राइस जो कमोडिटी की है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे प्राइस ऑफ जो एप्पल है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि सप्लाई जो एप्पल की है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट की गई है। सो पहले सपोज आप ये समझिए कि एट द इनिशियल स्टेज द प्राइस ऑफ द एप्पल इज ₹70। तो उस वक्त जो सप्लाई जो है उस एप्पल की जो पॉइंट ए पे प्रेजेंट किया गया है वो 600 kg है। एंड व्हेन द प्राइस राइसेस टू ₹80, then the supply extends to 800 kg, and when price rises still further to ₹90, then the supply extends to 1000 kg at point C. तो यहाँ पॉइंट A to C में एक्सपांशन ऑफ सप्लाई को प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे जब प्राइस जो एप्पल की थी, सपोज कीजिए कि इनिशियल स्टेज पे यानी बिगिनिंग में जब एप्पल की प्राइस ₹70 kg मीन्स ₹70 था, तब उस वक्त जो सप्लाई उसका था वो 600 kg था, जो पॉइंट ए पे प्रेजेंट किया गया है। अब जब एप्पल का प्राइस ₹80 हुआ तब उसकी सप्लाई जो है वो 800 kg तक बढ़ गया, और जब प्राइस जो है वो ₹90 हुआ तब उसकी सप्लाई जो है वो 1000 kg तक बढ़ गया एट पॉइंट सी। तो यहाँ पॉइंट ए टू सी में एक्सपांशन ऑफ सप्लाई दिखाया गया है। द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी ऑन सप्लाई कर्व इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। इस वजह से आप कह सकते हो कि जो मूवमेंट ए टू सी के पॉइंट तक हो रहा है उसको आप एक्सपांशन ऑफ सप्लाई बोल सकते हैं। नाउ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ए, if price fall to ₹60, supply contrast to ₹400 kg। ठीक इसी तरह से जब पॉइंट ए टू बी की तरफ आप देखते हो तब इनिशियल स्टेज पे जब एप्पल की प्राइस ₹70 थी तब उसका सप्लाई जो है वो 600 kg था। जब वो एक प्राइस जो है वो थोड़ी कॉन्ट्रास्ट हुई, वो थोड़ी घट गई और ₹60 हो गया, तब सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रास्ट होके वो घट के 400 kg हो गया। और एंड इफ द प्राइस फर्दर फॉल टू ₹50, अगर प्राइस और घट के ₹50 हो जाता है तो सप्लाई जो है वो भी कॉन्ट्रास्ट होके वो भी कम होके ₹200 kg हो जाएगा। सो एज सीन at point B on the supply curve, there is movement from point A to C, and on the same way the supply curve SS is called contraction of supply।
तो यहाँ पे जैसे आप पॉइंट ए टू सी को एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कर्व कहते हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी जो है उस प्रोडक्ट की वो भी बढ़ रही है। ठीक उसी तरीके से पॉइंट ए टू बी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एप्पल की प्राइस घट रही है तो उससे रिलेटेड सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। सो from point A to B, you can see the contraction of supply. So the point A to B of the supply curve can be termed as the contraction of supply. Okay, so this is something about the expansion and contraction of supply, which is the change that is taking place due to the change in the price of a commodity. Now, in the next point, we will understand about the increase and decrease in supply. Hello everyone. So, in the earlier slide, we have learned about the expansion and contraction of supply. In this slide, we will learn about the increase and decrease in supply. When one factor or some factors other than price change in favor of supply of a good, then there is rightward or upward shift in the supply curve. If cost of production fall, price of factors of production fall, stage of technology improves, number of supplier increases, government policy change in favor of product, then even if the price of a good remains constant, its supply increases as the entire supply curve shifts to right. तो यहाँ पे जब दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, वो सप्लाई के फेवर में अगर चेंज हो रहे हो तो सप्लाई में एक अपवर्ड शिफ्ट आता है, एक अपवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट आता है। तो कौन से चेंज जो है सप्लाई को फेवर करते हैं उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है। जब प्राइस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर नीचे जा रहा हो, प्राइस जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो नीचे जा रही हो, स्टेज जो टेक्नोलॉजी का लेवल जो है वो इम्प्रूव हो रहा हो, और सप्लायर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, और गवर्नमेंट पॉलिसी जब सप्लाई के फेवर में चेंज हो रही हो या किसी प्रोडक्ट के फेवर में चेंज हो रही हो, तब प्राइस के कांस्टेंट होने के बावजूद भी सप्लाई जो है वो किसी कमोडिटी का इंक्रीज होगा। If these factors change against the supply, then at the same price, supply decreases as the entire supply curve shifts to left. This happens when the cost of production rises, prices of factor of production rises, technology become expensive, number of supplier decreases, government policy change against the supply of a product and so on. और अगर यही फैक्टर्स जो सप्लाई के अगेंस्ट अगर काम कर रहे हो तो सप्लाई किसी प्रोडक्ट का डिक्रीज भी हो सकता है, और उस वक्त सप्लाई पर का जो शिफ्ट रहेगा वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ रहेगा। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनकी प्राइस भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगे, टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाए, नंबर ऑफ सप्लायर डिक्रीज हो रहे हो, और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंज हो रही हो, उसके अगेंस्ट में चेंज हो रही हो, तब जो है वो उस वक्त किसी भी चीज़ का जो सप्लाई रहेगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जो प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो अगर सप्लाई के फेवर में काम कर रहे हो तो सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होगी, और अगर वो उसके फेवर में काम नहीं कर रहे तो सप्लाई डिक्रीज भी हो सकता है। In the next slide, I am going to show you a diagram that is representing the increase and decrease that is taking place in supply. Hello everyone, today I am going to explain you about the increase and decrease in supply that is taking place because of the changes that are taking place in the other factors that are not related with the price. तो यहाँ पे एक डायग्राम प्रेजेंट किया गया है जो आपको ये शो करता है कि
प्राइस में इंक्रीज सप्लाई में किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज अराइज हो रहा है, कुछ जो दूसरे फैक्टर्स हैं, प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आने की वजह से. So here the same example is being given that is related to the price of apples and supply of apple. So here you can see the price of apple is remaining constant while the change is only taking place in the supply of apple because of the some factors that are working in favor of supply or due to the change in some of the factors that are working in favor or in against the supply. So here the change in the supply is being represented by some of the points that are represented on the diagram by point A, C and B. So at the initial stage at point A, the price of apple is ₹20 and at that time the supply is taking place of 300 kg. But when some one or other factors are working in favor of supply, at that time the supply increased by 400 kg, which is being shown on point C or through point C on S3 S3. Now on the other hand, when the other factors are not working in favor of supply and if they are working in against the supply, then the supply decreases, which is being shown from point A to B, or you can see from point in the point B the decrease in supply is being shown. So when the other factors are not working in favor of supply or if they are working against the supply, at that time the supply is decreasing from 300 to 200 kg, which is being represented through point B on S2 S2. So यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज जो सप्लाई में अराइज हो रहा है वो इनिशियल स्टेज में से जो इनिशियल स्टेज है पॉइंट ए से सी और पॉइंट ए से बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. In the next slide, I am going to give you a brief explanation with regard to this figure. जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सेम चीज आपको दूसरे स्लाइड में ब्रीफ फॉर्म में जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अराइज होगा या फिर इंटेंट होगा उस वक्त आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस फिगर का देना पड़ेगा जब भी इंक्रीज और डिक्रीज जो सप्लाई में अराइज हो रहा हो उसके बारे में पूछा जाए तब. ओके, hello everyone, so let us continue with the explanation that is related to increase and decrease in supply. So in the diagram you have seen that the price of apple is represented on y-axis while the supply is represented on x-axis. So in the initial stage the supply of apple is ₹20, which is being shown by point, and the supply of apple is taking place of 300 kg, which is being depicted by point A on S1 supply पर. तो इनिशियल स्टेज पे पॉइंट ए पर आपको जो प्राइस ऑफ एप्पल है वो ₹20 रिप्रेजेंट की गई है और उस वक्त पे जो सप्लाई है जो एप्पल का हो रहा है वो 300 kg का हो रहा है जो पॉइंट ए के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है ऑन S1 सप्लाई करके ऊपर. When price remained constant at ₹20, but one or some factors change in favor of supply of apple, then supply curve shift to right to S3 and the supply of apple increased to 400 kg. Now, जब दूसरे फैक्टर्स जो है वो सप्लाई के फेवर में काम कर रहे हैं तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है और वो पॉइंट सी की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो S3 लाइन के ऊपर है और वो सप्लाई में जो इंक्रीज हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है.
मीन्स उस पॉइंट पे सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है 400 kgs का, उसको पॉइंट सी रिप्रेजेंट करता है ऑन S3 सप्लाई कर्व के ऊपर। Now if some of other factors changes against the supply of apple, then the supply curve shift to left S2 and supply of apple decrease to 200 kg which is depicted by point B on S2। तो यहाँ पे जब दूसरे फैक्टर्स जो है अदर देन प्राइस वो सप्लाई के अगेंस्ट में जब काम कर रहे हो, देन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट which is showing the decrease in supply to 200 kg that is represented by point B on S2 supply curve। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ए बी सी के जरिए जो इंक्रीज और डिक्रीज जो सप्लाई में अराइज हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। थैंक यू। Hello everyone, so I am going to continue with the next point that is related to exception to law of supply। Now कुछ commodities के ऊपर law of supply applicable नहीं होता क्योंकि इन कमोडिटीज का जब प्राइस बढ़ता है तब उससे रिलेटेड सप्लाई उनकी नहीं बढ़ती, और जब इन कमोडिटीज का प्राइस घटता है तो इसकी सप्लाई घटे ऐसा जरूरी भी नहीं है। इस वजह से इन कमोडिटीज के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। So some of the commodities are there over which the law of supply is not applicable, और इन commodities को आप ये कह सकते हो कि they are exceptional to law of supply। Now पहली commodity है rare goods। Certain goods are rare and hence even if there is a significant rise in the prices, their supply does not rise। For example, ancient coins, ancient ideals, original manuscript, old books, ancient handicraft, etc. However, such goods do not have any current production. Therefore, instead of considering this as an exception to law of supply, should be kept out of study of supply। तो कुछ ऐसे गुड्स या कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं एप्लीकेबल होता, और उसमें पहला है रेयर गुड्स। तो ये वो गुड्स होते हैं जिनका अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो भी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि उनका करंट प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे रेयर गुड्स का थोड़ा एग्जांपल भी दिया गया है। उसमें एशियन कॉइन्स आते हैं जो प्राचीन सिक्के होते हैं, प्राचीन मूर्तियाँ होती है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, उन ओल्ड बुक्स होते हैं या फिर एशियन हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ कुछ रेयर गुड्स होते हैं जो इनका करंट प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। इस वजह से अगर इन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती हो तो उनका सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा। इस वजह से इनको रेयर गुड्स कहते हैं और रेयर गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। दैट व्हाई दे आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ पेरिशेबल गुड्स। Highly perishable goods like milk, milk product, green vegetable, meat, eggs, fish, red fruits, flowers, etc. cannot be stored for long time. Hence, even if their price falls, their supply will not contract as they cannot be preserved and hence must be sold। However, in current time, even with availability of cold storage, even this exception is debatable। तो कुछ ऐसे पेरिशेबल आइटम्स हैं जिन्हें आप ज़्यादा लंबे समय तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि दूध के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, मीट, एग, फिश, फ्लावर्स, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप लंबे समय तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते। इस वजह से अगर इन कमोडिटीज का प्राइस डिक्रीज भी हो जाता है तो भी इनकी सप्लाई जो है वो नीचे जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक के लिए स्टोर किया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें जल्दी से बेच देना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर इन कमोडिटीज का प्राइस नीचे जाएगा तो इनकी सप्लाई नीचे जाए ऐसा ज़रूरी
नहीं होगा। हालांकि अभी के समय में अगर देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज की वजह से इन कमोडिटीज का जो सप्लाई रहता है वो नीचे जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर इनका प्राइस नीचे जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो अभी की कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की वजह से भी इन कमोडिटीज को ज़्यादा लंबे समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि इन्हें आगे जाके हम बेच सकें। तो भी टेक्स्ट के हिसाब से ये पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ सप्लाई से, क्योंकि इन कमोडिटीज को ज़्यादा लंबे समय तक के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से अगर इनकी प्राइस डिक्रीज भी हो जाती है, प्राइस नीचे आ जाती है, तो भी इनका सप्लाई नीचे आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस वजह से ये भी कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। थैंक यू। In the next session, I will continue with the price determination.